ओ कनाडा के चौथे एपिसोड में बदर मुनीर चौधरी का सलाम। आज हम टोरंटो से 3 घंटे की मुसाफत पर डिस्कवरी हार्बर पर मौजूद हैं और ये मंज़र है 1812 सन का। ये ओरिजिनल नेवल और मिलिट्री बेस था उस जंग के दौरान। कैप्टन भी इसके आगे हैं जो आजकल अपॉइंट हैं यहाँ पर, उनसे बात करेंगे और इस तारीखी जहाज़ के हवाले से मालूमात हासिल करेंगे। मेरे साथ आइए। At the time of the original, it was called His Majesty's Establishment on Lake Huron, and it was built primarily to safeguard the back door to Upper Canada against a possible American invasion. Now, as mentioned as well, it was going to be a very major dockyard, but of course the War of 1812 ended before it could be completed, and then it was rebuilt in 1817, and that's where we see a lot of major activity taking place. Now, in reference to the two vessels behind me, again, these are replica tall ships. They are built to the same specs of the original, but they do have engines and so on to meet modern requirements. Recently, however, the larger of the two, the HMS Tecumseh, located over here, we were able to find an original deck plan that laid out where rooms, etc., were located. And what we've done over the past year or so is we've actually used that deck plan to renovate below decks to make it look much more historical than it did in the past. And that's what you're going to see in just a few moments. As mentioned, we have the original remains of this vessel built in 1815 at the north end and is currently going to be in our brand new display area. But this is the replica that was built in the 1990s. Now, just before you come aboard, it is of course tradition that you ask permission to come on board a vessel. Even I, as the captain, if I was out here and one of my sailors was on deck this vessel, I would have to ask their permission to board, even though I outrank them. So in order for me to let you come aboard, you have to ask me politely for your permission to come aboard this vessel. So you can do it all together to save time. So on the count of 3, 1, 2, 3. Permission granted. Americans and the British had their share of vessels of war and transport. This one was primarily used for the transport of either goods or men from place to place. At that time during the war, of course, we had very little in the way of roads and so on, so the waterways were the roads. You could move relatively faster on water than you could on land in those days. And thus, ships were very, very important, such as this one. Even though it was more of a troop transport, it could carry guns. The original deck plan actually indicated the presence of 2 24-pound cannons at the back here. And when I say 24-pound, that's the weight of their shot, not the weight of the cannon itself. That's what they could fire. And they also had 2 smaller guns up front. So this vessel could be used to fight as well as to transport people from place to place. Now, as mentioned, folks, you're welcome to go downstairs. It has been turned back to the time of the original HMS Tecumseh. Please be very careful on the stairway leading down below because it is narrow and very, very steep. I'll give you some time to explore down there at your leisure. हम इस तारीखी जहाज़ के अंदर अब पहुंच चुके हैं जहां पर मुख्तलिफ स्टोरेज के लिए चीज़ें रखी गई हैं। ये देखिए, इसमें पानी रखा जाता था ताकि अगर दरमियान में कहीं लंबे सफ़र पे आप जा रहे हैं तो कम से कम पीने का पानी अंदर दस्तयाब हो, क्योंकि बाहर जो पानी है वो पीने के काबिल नहीं होता। कुछ और मंजर मैं आपको दिखाता हूँ, आइए देखते हैं अंदर को। और ये देखिए, ये कैप्टन का छोटा सा कमरा है जिसमें उसके आराम के लिए बड़े मुनफरिद किस्म के बेड यहाँ पे लगे हुए हैं और इसमें वो कैप्टन जब आराम करना चाहे तो वो यहाँ पर आता है। ये जहाज़ में इस्तेमाल होने वाली मुख्तलिफ अशिया पड़ी हुई हैं यहाँ। हमारे रवैये बड़ी अहमियत के हामिल हैं। जब हम
पाकिस्तान जाते हैं मुख्तलिफ़ एयरलाइन से, कभी हम दूसरी एयरलाइन का इंतखाब करते हैं, कभी हम अपनी कौमी एयरलाइन का इंतखाब करते हैं, उसके अंदर हमारे क्या रवैये होते हैं, ये है आज का सवाल और जवाब हासिल करते हैं आफ्ताब रिजवी से। बदर साहब, ये बहुत अच्छा सवाल है। जितने लोग यहाँ पाकिस्तान से आए हैं वो कम से कम साल में एक दफ़ा इस तजुर्बे से ज़रूर गुज़रते हैं कि वो यहाँ से पाकिस्तान जाते हैं, या तो अपनी कौमी एयरलाइन से जाते हैं या किसी और एयरलाइन से जाते हैं। अगर हम पब्लिक से मालूम करें, अगर लोगों के दरमियान हम बैठें और लोगों की शिकायत सुने, तो आप अमूमन ये देखेंगे कि लोग कहते हैं कि कौमी एयरलाइन का जो अमला है वो उनके साथ अच्छा रवैया नहीं रखता, ना बुकिंग के वक्त करता है, ना बोर्डिंग कार्ड के वक्त, ना जहाज़ पे उनको सर्विस सही मिलती है, और इस तरह वो पाकिस्तान परेशान हाल पहुँचते हैं। मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा ये है कि दीगर एयरलाइनों में और हमारी कौमी एयरलाइन में कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क सिर्फ हमारे एक्सपेक्टेशन लेवल का है। हमारा एक्सपेक्टेशन लेवल और हमारी कौमी एयरलाइन के अमले का एक्सपेक्टेशन लेवल हमारे साथ। आप देखेंगे कि अमली ज़िंदगी में हम जिसको जितना ज़्यादा जानते हैं या जिसको जितना ज़्यादा समझते हैं, उसको उसी हिसाब से उससे हम बिहेव करते हैं। तो जब हम अपनी कौमी एयरलाइन में अपने लोगों के साथ सफ़र करते हैं तो हमारा एक्सपेक्टेशन लेवल बढ़ जाता है कि ये हमारा अपना है, लिहाजा हमारा ज़्यादा ख्याल रखेगा। जब हम किसी और एयरलाइन के साथ होते हैं, वो चाहे मशरिक़ वस्ता की कोई एयरलाइन हो, सऊदी अरब की हो, इटली की हो, या एयर कनाडा हो, या बरतानिया की कोई हो, उसमें हम एक लिहाज में रहते हैं। उस लिहाज की वजह ये होती है कि हमें उससे डर लगता है कि अगर हमने कोई बदतमीज़ी की या हमने कोई गलत जुमला कह दिया तो सामने वाला हमारी शिकायत भी कर सकता है और सामने वाला हमें इल ट्रीट भी कर सकता है या हमारे साथ बदतमीज़ी भी कर सकता है। तो जहाँ जहाँ तवक्कात ज़्यादा होती हैं वहाँ वहाँ इंसान ये कोशिश करता है और ये चाहता है फितरी तौर पर कि उसका ज़्यादा ख्याल रखा जाए। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि अमले से क़त्ए नज़र हमारे मुसाफिरों का भी रवैया ऐसा होता है कि गोया जो कौमी एयरलाइन का अमला है वो उनका ज़ाती मुलाजिम है। दुनिया में जो फैसिलिटेशन सर्विसेज होती हैं, कस्टमर सर्विसेज होती हैं, वो मुलाजिम या आजिर और मुलाजिम का रिश्ता नहीं होता है। वो एक कस्टमर सर्विस होती है, फैसिलिटेशन सर्विस होती है जो आपको सहूलत पहुंचाई जाती है दौरान सफ़र। तो अगर आप उनको मुलाजिम समझेंगे तो यकीनी तौर पर वो अमला आपसे बदतमीज़ी से पेश आएगा और आपसे खुश अखलाक़ी से पेश नहीं आएगा। लेकिन अगर आप ये समझेंगे कि ये एक शोबा है, इनका ये जॉब है और इनकी जॉब के कुछ तकाज़े हैं, उसको ये पूरा कर रहे हैं जैसे किसी और एयरलाइन के लोग कर रहे हैं, तो ना आपको इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होगी और ना आपको इतनी ज़्यादा मायूसी होगी। तो मैं समझता हूँ कि कौमी एयरलाइन में सफ़र करने वाले इस बात को ज़रूर जहन में रखें कि हमें वाइस वर्सा एक दूसरे का ख्याल भी रखना है, एक दूसरे से तमीज़ से भी बात करनी है और मोहब्बत से एक दूसरे को जीतने की कोशिश करनी है। हमारी कौम की मिनहसुल मजमू एक आदत है कि वो दूसरों से जीतना चाहती है। हर इनफरादी शख्स दूसरे से जीतना चाहता है, जबकि मैं ये समझता हूँ कि दूसरे से जीतने से ज़्यादा अहम चीज़ दूसरे को जीतना होती है। और दूसरे को आप सिर्फ उस सूरत पर जीत सकते हैं कि आप उसका एहतराम करें, उसकी रेस्पेक्ट करें। दुनिया में इज़्ज़त करने का सिर्फ एक तरीक़ा है कि आप सामने वाले की इज़्ज़त करें। नामुमकिन है कि आपकी कोई बेइज्जती करे और उसके जवाब में आपकी इज़्ज़त ना करे। तो यही फ़र्क है हमारी कौमी एयरलाइन के सफ़र में और दीगर एयरलाइन के सफ़रों में कि हम अपने से एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा रखते हैं और मायूस भी ज़्यादा होते हैं। डिस्कवरी हार्बर का हर मंज़र दिल को बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन साथ साथ दूसरे सेगमेंट भी चलाने हैं। आइए अगला सेगमेंट देखते हैं। एक सियासी लीडर है, चौक में आके तकरीर करता है, उसका नाम है शेख अमजद लोया। उसके नारे भी ऐसे बोल के बोलो कि होया अमजद लोया, अमजद लोया पाया दूध से बन गया खोया, अमजद लोया, अमजद लोया। तो मोहतरम मलक जफर साहब। स्टेज ड्रामे के हिदायतकार और मुसन्निफ ज़फ़र शाह के ड्रामे ये चौक हमारा है कि तकसीम स्क्रिप्ट की तकरीब मुकामी रेस्टोरेंट में मुनक़िद हुई, जिसमें पाकिस्तान के मारूफ फ़नकारों उस्मान पीरज़ादा और समीना पीरज़ादा ने ख़ुसूसी शिरकत की। दोनों फ़नकारों ने पाकिस्तान के टीवी ड्रामे के हाल और मुस्तकबिल पर भी तफसीली गुफ्तगू की। इस मौका पर प्रोड्यूसर सरफराज राना भी मौजूद थे। आजा आजा जिंदे शामी याने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले, ना जाने दिल विच की आया, प्रेम प्याला पी आया, मैं पी आया, मैं जी आया, मैं प्रेम दा प्याला पी आया, मैं जी आया। मैं रमता जोगी, मैं रमता जोगी, जोगी जोगी, मैं रमता जोगी, मैं रमता जोगी, जोगी 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 जोगी।
दोस्तों मेरा नाम सुखविंदर सिंह है, आपका अपना थोड़ा अपना सुखी, और आप मुझे सुन रहे हैं ओ कनाडा पर बदर के साथ। डिस्कवरी हार्बर की सैर जारी है, हमारे साथ रहिएगा। छोटे से कमर्शियल वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। Now, Habib Canadian Bank has opened its second new branch in Scarborough. In addition to Mississauga, you can also get all the full banking services in Scarborough and surrounding area. Habib Canadian Bank is your bank in Canada. Send money worldwide fast. With confidence, reliability, and peace of mind. For home remittance. Your bank in Canada, Habib Canadian Bank. Service with security. That's Habib Banking. वर्ल्ड इस्लामिक मिशन कनाडा ओकविल शहर में एक तारीखी कारनामे का आगाज कर रहे हैं। हम मस्जिद नूरुल हरम की तामीर शुरू कर रहे हैं, जो कि इंशाअल्लाह इमारती डिजाइन से मुतल्लक एक अहम इम्तियाजी निशान साबित होगी। अब भी आइए और हमारे साथ हमारी मौजूदा और आने वाली नस्लों के फायदे के लिए इस नेक काम में हिस्सेदार बनिए। बराह मेहरबानी इस तामीरी मंसूबे को अंजाम तक पहुंचाने में फराख दिली से मदद कीजिए। मजीद तफसीलात के लिए फ़ोन कीजिए 905-257-1342, फिर ऑनलाइन जाइए wimcanada.com।